Good morning. My name is Neha Madankar and today I am going to teach topic that is the cell. So before start our topic, let's see contents. Firstly, we will see introduction about cell. After that, we will go throughout the discovery of cell. And lastly, we will see the structure of cell. So let's start with introduction. When we look around, we see both living and non-living. सो हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि यही लिविंग थिंग और यही नॉन लिविंग थिंग है? ऐसा क्या है जो कि प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है? द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेक्स देम लिविंग एंड यूनिट विच इज अ स्पेशल नेम सेल. All the living things which present on the earth are made from cell, which is known to be the building block of living thing. Cell can be defined as basic, smallest, structural, fundamental and functional unit of life. Why cell is called as basic, smallest, structural, fundamental and functional unit of life? To understand this, let's take the example of book. How this book is made? First, letters. When many letters are comes together give word. When many words are comes together give sentence. When many sentences are comes together give passage, and when many passages are comes together give chapter, and when many chapters are comes together give this complete book. And this book provide information whatever we want. So in this example we see the structural organization of book. Similarly, there is the structural organization level in living organism too. First, cell. When many cell are comes together give tissue. When many tissue are comes together give organ. When many organs are comes together give organ system. And when many organ system are comes together give the body of organism. मतलब कि ये जो लिविंग थिंग की बॉडी है ये बहुत सारे सेल से बनी है. सेल प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट different type of process to keep entire system active. Therefore, cell is called as basic, smallest, structural, fundamental and functional unit of life and also the building block of living thing. Next point है cell can be regenerate. अबे regeneration क्या है? इसको समझने के हम एक एग्जांपल लेते हैं. जब आपको कुछ इंजरी होती है तो सबसे पहले वहां से ब्लड आना स्टार्ट होता है और वो ब्लड अपने आप ही फिर स्टॉप हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो जो वुंड है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है. सो ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जब आपको कुछ इंजरी होती है तो सबसे पहले वहां के सेल डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. वो सेल खुद से डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं. उसी कारण वहां पे एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है. वो थिन लेयर कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है और वो जो वुंड है अपने आप ठीक हो जाती है. मतलब कि वहां के सेल खुद को डिवाइड करके वहां के सेल खुद को रीजनरेट कर रहे हैं. मतलब कि सेल में ऐसा फिनोमेना है कि खुद को रीजनरेट करते हैं. सो देयरफॉर सेल कैन बी रीजनरेट. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल. In 1665, Robert Hooke first observed the cell using the compound microscope in the dead cocoa tree. अब ये जो सेल होते हैं ना बहुत ही माइन्यूट होते हैं, हमें विजिबल आई से दिखाई नहीं देते. सो सेल को देखने के स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया इन डेड कॉक ट्री यूजिंग दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व सम हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक अ बी हाइव, मतलब कि मधुमक्खी के छाते जैसा, और उन्होंने उसे आगे जाके नाम दिया सेल. सो ऐसी हुई सेल की डिस्कवरी. अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो बेसिकली सेल इज मेड अप ऑफ फोर मेन पार्ट: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and cell organelles. Let's see one by one. First is the cell wall. Cell wall is the outermost covering in plant cell. It absent in animal cell. Cell wall protect and give strength to the cell. Next is the cell membrane. Cell membrane is the outermost covering in animal cell.
Cell membrane also called as plasma membrane. Plasma membrane present in both plant cell as well as animal cell. Plasma membrane protect and give definite shape to the cell. This plasma membrane is the selectively permeable membrane. अभी selectively permeable क्या होता है? So इसको समझने के लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं. देखो, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय को छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करते हैं. मतलब कि जो भी आपको फिल्टर्ड पार्ट चाहिए, जो चाय वो फिल्टर होता है वो छन्नी की हेल्प से. और जो भी अनवांटेड जो चाय पत्ती हो अपने आप ही रिमूव हो जाती है. सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा ही फंक्शन करती है. हमारी बॉडी के अंदर हम बहुत सारा कुछ ना कुछ खाते रहता है. ऐसा थोड़ा कि सेल को सभी चीजें चाहिए. ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो भी अनवांटेड चीजें वो वहाँ पे उनको फिल्टर करती है, और जो भी वांटेड है वो सेल जो भी सेल को चाहिए वो सेल के अंदर आने देती है, और जो भी अनवांटेड है वो सेल के बाहर ही कर देती है. Due to this reason, it can be regulate the transport of substance in and out from the cell. अब next है cytoplasm. Cytoplasm is a gelatinous fluid-like substance which fills inside the cell. Cytoplasm is composed of water, salt, and various organic molecules. The cytoplasm is responsible for holding the component of cell. साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेलुलर कंपोनेंट को होल्ड करके रखता है और उनको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से. इनसाइड द साइटोप्लाज्म द सेल ऑर्गेनेल्स आर स्कैटर्ड. अबे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स सम ऑर्गन्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. सिमिलरली सेल also requires some organs to perform their functions, and such organelles are called as cell organelles. Cell organelles are the individual part within the cell, and each cell organelles have to perform specific function, which mainly include nucleus, then endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, next vacuole and lysosome. So let's see one by one. First is the nucleus. Nucleus is a double membrane bounded cell organelle almost found in all eukaryotic cells. It is the largest cell organ which acts as a controlling unit of cell. न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, इसीलिए वो सेल को कंट्रोल करके रखता है. इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन और हेडक्वार्टर कहा जाता है. न्यूक्लियस एज न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, then nucleolus and chromatin. So let's see one by one. First is the nuclear envelope. Nuclear envelope is the outermost covering which covers the nucleus. On the surface of nuclear envelope, the more pores are present, which is called as nuclear pore. This nuclear pore are the passage through which the movement of RNA and protein molecule takes place. Next is the nucleoplasm. Nucleoplasm is the thick, gelatinous, transparent, fluid-like substance which fills inside the nucleus. It composed of various organic molecules. Along with this, it also has nucleolus and the chromatin. अभी nucleolus और the chromatin क्या है, चलो देखते हैं. Nucleolus is the spherical structure which present inside the nucleus. It produces ribosome. That ribosome further produce protein, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का. ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है. अब नेक्स्ट इज द क्रोमेटिन. क्रोमेटिन और द क्रोमेटिन मटेरियल इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ रहता है. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम. अब ये क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसे कहा जाता है क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम क्या है. अब आपको पता है कि बहुत सारे कैरेक्टर है आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होते हैं. ऐसा क्यों होता है, ये होता है इस क्रोमोसोम के वजह से. ये क्रोमोसोम बना रहता है डीएनए से, और वो डीएनए बना रहता है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट से, उसे कहा जाता है जीन. और यही जीन रिस्पॉन्सिबल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और जनरेशन टू जनरेशन. ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में.
अब नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected, flatted, enclosed membrane, tubules and sacs. There are two different types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, that is the RER, and next is the smooth endoplasmic reticulum, that is the SER. चलो देखते हैं one by one. First is the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is a network of interconnected flatted sac. On the surface of rough endoplasmic reticulum, the small particles are present which is called as ribosome. That ribosome give rough appearance to endoplasmic reticulum and it plays central role in the synthesis of protein. अबे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे फ्लैटेड सैक से बने रहते हैं जो कि एक के ऊपर ऐसे अरेंज रहती है और ये जो सैक होती है ना एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड रहती है और इनकी सरफेस पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको कहा जाता है राइबोसोम और ये राइबोसोम इसको रफ अपीयरेंस देता है. सो इसी कारण इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और ये सबसे मेन रोल प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अब नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द membrane bounded tubules which membrane bounded tubule. It is the storage organelle associated with the production of lipid and steroid. In addition to this, it also help in the detoxification of cell. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं और ये एक स्टोरेज ऑर्गन है जो कि लिपिड और स्टेरॉइड का प्रोडक्शन करता है और इनके साथ ही ये सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है. सो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल which formed in the cell. It composed of series of interconnected flatted sacs which is called as cisternae. It responsible for modification, packaging and transporting the lipid and protein. अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंडेड ऑर्गन है जो कि सेल में पाया जाता है. ये बहुत सारे फ्लैटेड सैक्स के से बना रहता है जो कि एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज रहती है और उन्हें कहा जाता है सिस्टर्नी. अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक साइड से अटैच रहता है. ऐसा क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी मटेरियल सिंथेसिस होता है वो पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है फिर वहां पे आके उनका मॉडिफिकेशन होता है और उसका पैकेजिंग होता है. मतलब कि जैसे फैक्ट्री में कैसा होता है सेम वही फंक्शन यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है. उन मटेरियल का पहले वहां पे मॉडिफिकेशन होता है उसके बाद पैकेजिंग होता है और फर्दर सेल ऑर्गेनेल को फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है. अब नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is a double membrane cell bounded organelle almost found in all eukaryotic cells. It is called as powerhouse of cell as it produces energy rich molecule in the form of ATP that is adenosine triphosphate which provide energy to the cell. अब माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन है जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फॉर्म करता है दैट इज एटीपी मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. वो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है. नेक्स्ट इज द वैक्यूल. वैक्यूल mostly defined as the storage bubble of irregular shape. It store food, variety of nutrient and in addition to this it also store the waste and this waste product is eventually thrown out. अब वैक्यूल एक इरेगुलर शेप का स्टोरेज बबल है. इनके अंदर बहुत सारी स्पेस रहती है. सो वहां पे वो फूड और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है और जब भी सेल को जरूरत पड़ती है तो उसी समय वो इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है समय समय पे वहां से बाहर निकाल दिया जाता है. सो ये हो गया वैक्यूल. नेक्स्ट है लाइसोसोम. लाइसोसोम आर द single membrane cell organelle.
इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्स विद द एंजाइम। एक लाइसोसोम के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बना रहता है। ये बहुत ही सिंपल रहता है। इनके अंदर बहुत सारा एंजाइम फिल्डेड रहता है। अब इनका फंक्शन क्या होता होगा? अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप फंक्शंस हैं। सबसे पहले लाइसोसोम क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया और वायरस सेल को अटैक करते हैं, इनको ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी होती रहती है। उसी कारण मतलब कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती है, तो उसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता होगा। वो वेस्ट को भी ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है। और जब सेल ओल्ड हो जाती है और कभी कभी सेल डैमेज होने को, किसी इंजरी के कारण सेल डैमेज हो जाती है, तो उनके अंदर जो भी लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है वो बस्ट हो जाता है और उसके अंदर जो भी वो एंजाइम रहता है वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर डालता है। इसी कारण लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है। ये हो गया सेल के बारे में। थैंक यू।